10th. I hope you are fit and fine, healthy at home. Children, now social sciences will be taught for the rest of the month by Hardeep sir only. So please open your civics book and lesson number 6 we have to start, that is political parties. Open to page number 71. Page number 71, political parties. Now, children, in the ninth class, you have read that India is a democratic country. लोकतंत्र सरकार है. And you know what is democracy? Democratic country. For the people, by the people, of the people. Right? लोगों के लिए बनाई गई सरकार, लोगों द्वारा चलाई गई सरकार, उसको डेमोक्रेसी कहते हैं. नाइन्थ क्लास में इन पार्टी का रोल क्या है, डेमोक्रेसी के राइज में इन पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल क्या है, इनका संविधान का डिज़ाइन क्या है, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स, राइट, वोटिंग किस उससे होती है और गवर्नमेंट की वर्किंग किस प्रकार से सरकार की होती है, उसका नेचर क्या है, ये सारा इस चैप्टर में बताया. तो इस चैप्टर में वी विल बी डीलिंग विद पॉलिटिकल पार्टीज. व्हाट डू पॉलिटिकल पार्टीज डू, राइट? व्हाई डू वी नीड पार्टीज? हाउ मेनी पार्टीज आर गुड फॉर अ डेमोक्रेसी, राइट? पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है? सेकेंड चीज़ हम इस लेसन में सीखेंगे, हमें पॉलिटिकल पार्टी या किसी पार्टी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, पार्टीज़ की ज़रूरत क्यों है. और तीसरी बात इसमें हम पढ़ेंगे कितनी पार्टीज़ एक डेमोक्रेसी के लिए अच्छी होती हैं. ठीक है. So, in the light of these, we introduce the national and regional political parties in today's India and then look at what is wrong with political parties and what can be done about it. तो आइए इस रोशनी में आपको इंट्रोड्यूस कराएं अपने नेशनल और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ जो आज भारत में हैं, और आए देखें कि इनमें इनके फंक्शनिंग में अब क्या गलती है और इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए क्या किया जा सकता है. पेज 72. Why do we need political parties? Political parties are easily one of the most visible institutions in a democracy. For most ordinary citizens, democracy is equal to political parties. If you travel to remote parts of a country and speak to the less educated citizen, you could come across people who may know nothing about our constitution or about the nature of our government. But chances are there that they would know something about our political parties. At the same time, this visibility does not mean popularity. Most people tend to be very critical of political parties. They tend to blame parties for all that is wrong with our democracy and our political life. Parties have become identified with social and political divisions. Therefore, it is natural to ask, do we need political parties at all? About 100 years ago, there were few countries of the world that had any political party. Now, there are few that do not have parties. Why did political parties become so omnipresent in democracies all over the world? Let us first answer what political parties are, what do they do, before we say why we need them. पॉलिटिकल पार्टी क्या होती हैं, पॉलिटिकल पार्टी क्या करती हैं, पॉलिटिकल पार्टी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, इन सब चीज़ों के बारे में अब हम आगे पढ़ने जा
रहे हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो आप ये याद रखेंगे कि एक ग्रुप लोगों का, एक झुंड, एकत्रित लोगों का झुंड जो इकट्ठे होकर इलेक्शंस को कंटेस्ट करके गवर्नमेंट की पावर को होल्ड करते हैं, उसको एक पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। हम फिर बोलेंगे, अ ग्रुप ऑफ पीपल जो इलेक्शंस को कंटेस्ट करने के लिए आते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पर और गवर्नमेंट की पावर को होल्ड करने के लिए होते हैं। इस तरह की पार्टी को, ग्रुप के पीपल को पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। नाउ इन इंग्लिश, a political party is a group of people who come together to contest elections and hold power in government. They agree on some policies and programs for the society with a view to promote the collective good. और ये लोग ऐसी नीतियाँ बनाते हैं और ऐसे प्रोग्राम गठित करते हैं जो कि समानतः सबके लिए गुड है, कलेक्टिव गुड प्रमोट करता है। समाज के लिए वैसी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम बनाते हैं। सिंस देयर कैन बी डिफरेंट व्यूज़ ऑन व्हाट इज़ गुड फॉर ऑल, पार्टीज ट्राई टू परसुएड पीपल व्हाई देयर पॉलिसीज़ आर बेटर देन अदर्स। अब इसके बावजूद, क्योंकि लोग अलग अलग विचार के हैं, अलग अलग ओपिनियन के हैं, तो थोड़ा सा विचार या ओपिनियन में फ़र्क आ जाता है। हर एक का सोचना विचारना कि ये अच्छा है या नहीं थोड़ा डिफरेंट है। इसीलिए पार्टीज़ जो होती हैं वो लोगों को परसुएड करती हैं कि हमारी पॉलिसी दूसरे कंट्री की पॉलिसी से अच्छी कैसे है। They seek to implement these policy by winning popular support through election. और ये पॉलिसीज़ को अच्छा तब किया जाता है जब वो इलेक्शंस के थ्रू विन कर जाते हैं। जब कैंडिडेट जीत जाता है इलेक्शंस के बाद, लोकप्रिय हो जाता है, फिर वो इन नीतियों को बनाकर, इन प्रोग्राम्स को बनाकर पॉपुलर करते हैं, लोकप्रिय करते हैं लोगों में। Thus parties reflect fundamental political divisions in a society. इस प्रकार से पार्टीज जो होती हैं एक राजनीतिक डिवीज़न समाज की कर उनको दिखाती हैं। ठीक है, एक समाज का राजनीतिक डिवीज़न पार्टीज़ ही रिफ्लेक्ट करती हैं और पार्टीज़ आर अबाउट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। और ये पार्टी कोई अलग नहीं होती, ये समाज में से ही होती हैं और इसीलिए दस इन्वॉल्व पार्टनरशिप नहीं है, ध्यान देना, एक नया वर्ड है आपके लिए, पार्टीशनशिप। पार्टीशन कौन होता है? एक वो पर्सन जिसने एक पार्टी को कमिट किया होता है। ठीक है, वो कमिटेड है उस पार्टी के लिए या उस ग्रुप के लिए या उस फैक्शन के लिए, उसको पार्टीशन कहते हैं। और पार्टीशनशिप इज़ मार्क्ड बाय अ टेंडेंसी टू मेक अ साइड एंड इनएबिलिटी टू टेक अ बैलेंस व्यू ऑन एन इशू। ठीक है, एक बैलेंस व्यू लेता है वो किसी भी इशू का। 10. अ पार्टी इज़ नोन बाय विच पार्ट इट स्टैंड्स फॉर। तो एक पार्टी पहचानी जाती है जिस पार्ट पर वो खड़ी है, कौन सी नीतियाँ वो सपोर्ट करती है और कौन कौन सी नीतियों में वो इंटरेस्ट लेकर उसको अपहोल्ड करती हैं। इस प्रकार एक पॉलिटिकल पार्टी 3 कंपोनेंट्स में विभाजित की जाती है। एक पार्टी को हम 3 उसमें विभाजित करते हैं, 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ द लीडर्स, नंबर 2 इज़ द एक्टिव मेंबर्स एंड नंबर 3 इज़ द फॉलोअर्स। ठीक है बेटा,
अब एक पॉलिटिकल पार्टी पहले होते हैं उनके लीडर्स, फिर उसमें ही एक्टिव मेंबर्स होते हैं जो पार्टी के लिए काम करते हैं, दिन रात दौड़ते हैं। फिर तीसरे होते हैं अनुयायी, फॉलोअर्स, जो उसको फॉलो करके और सक्सेसफुल बनाते हैं। ठीक है, तो ये था पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग जो आपको बताया और उसके कितने भाग होते हैं। अब हम फंक्शन पर चलते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंक्शन। व्हाट डज अ पॉलिटिकल पार्टी डू? असल में ये पॉलिटिकल पार्टी करती क्या है? बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज फिल पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर। अब जैसे इस पार्टी को हमने नाम दे दिया पॉलिटिकल पार्टी, राजनीति की पार्टी, इसी तरह आप याद रखोगे कि पॉलिटिकल ऑफिसेज फिल करती हैं अपने पॉलिटिक्स से और इनको एक्सरसाइज करते हैं, काम में लाते हैं पॉलिटिकल पावर को। एंड पार्टीज डू सो बाय परफॉर्मिंग अ सीरीज, और ये एक नहीं अनेक फंक्शंस इन पार्टीज़ को परफॉर्म करने होते हैं। नंबर 1, पहले शॉर्ट में बता देता हूँ। नंबर 1, पार्टीज़ का काम है इलेक्शंस को कंटेस्ट करना, compete करना, इलेक्शन लड़ाने, ये पार्टीज़ का काम है। दूसरी बात, पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स को फ्रेम करना, और ये वोटर्स चूज़ करते हैं। नीतियाँ बनाना और प्रोग्राम बनाना, ये इसका दूसरा फंक्शन है। थर्ड फंक्शन इज डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉज। ठीक है, डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉज, कानून बनाना, और अपना एक डिसाइसिव रोल उस देश द्वारा तय किया जाता है। ठीक है, मेकिंग लॉ का तो आपको पता ही है, छोटा सा बता दूं। लॉ जो होता है, वैसे पहले राज्यसभा में उस पर डिबेट होता है, डिबेट होकर फिर उसको लेजिस्लेचर में पास ऑन कर दिया जाता है। लेजिस्लेचर के सारे मेंबर्स पहले उसको देखते हैं, वो डायरेक्शन द्वारा जाते हैं पार्टी लीडरशिप, और अपने अपने पर्सनल ओपिनियंस देते हैं। फिर उसके बाद कहीं वो बिल बनता है, फिर वो साइन होता है, फिर जाकर कहीं लॉ बनता है। पढ़ा है आपने, हाउ लॉ इज मेड। ये तो था थर्ड पॉइंट, पार्टीज़ का फंक्शन क्या होता है, डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉज। चौथा पॉइंट, द फंक्शन ऑफ द पार्टीज इज टू फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, सरकार को गठित करना और सरकार को चलाना। ठीक है, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का ही काम है। वो रिक्रूट करती हैं लीडर्स, उनको प्रशिक्षित भी करती हैं, और फिर उसके बाद मिनिस्टर बना देती हैं, जो मिनिस्टर सरकार के बीच होते हैं, और वो गवर्नमेंट को जिस तरह चाहें रन कर सकते हैं, इन द वे दे वांट। फिफ्थ पॉइंट है, पांचवा फंक्शन, वो पार्टियां जो इलेक्शन में हार जाती हैं और ऑपोजिशन का रोल प्ले करती हैं, उन पार्टी के खिलाफ जो अब पावर में, बाय वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज़ एंड क्रिटिसाइज। अच्छा, हमेशा आपको पता है ऑपोजिशन तो क्रिटिसाइज ही करेगा। एक पार्टी जो पावर में है और दूसरी पार्टी जो उसकी ऑपोजिशन में है, वो उसको, उस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करती है, उसकी रॉन्ग पॉलिसीज़ के कारण, उसकी फेलियर के कारण। ठीक है, वो सरकार को थोड़ा सा परेशानी सी हो जाती है, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टीज ऑल्सो मोबिलाइज ऑपोजिशन टू द गवर्नमेंट। तो पांचवा आप याद रखेंगे, parties also play the role of opposition to the parties in power। बस इतना पॉइंट। सिक्स्थ फंक्शन इज
पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन। इन पार्टियों ही का ही काम है, ये ही मिलके उनकी राय को शेप देती हैं। अब अलग अलग राय को ग्रुपिंग करना होता है और एक ओपिनियन बनाना होता है सबका। ये काम सिर्फ पार्टीज़ का ही है, ठीक है। वो हाईलाइट करती हैं इश्यूज़ को, और पार्टी के अंदर लाखों मेंबर होते हैं और एक्टिविस्ट होते हैं जो कि पूरे देश में फैले हुए होते हैं। इनमें से काफ़ी सारे तो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, और एक्सटेंशंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ अमंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ, और अलग अलग समाज के सेक्शंस में से लोग होते हैं पॉलिटिकल एक्सटेंशंस में, ठीक है। कभी कभी ये पार्टीज़ कोई रेजोल्यूशन किसी मूवमेंट के लिए भी लॉन्च करती हैं, वो जो लोग फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स, उसके लिए वो लॉन्च मूवमेंट फॉर द रेजोल्यूशन। अक्सर जो है ओपिनियंस इन द सोसाइटी क्रिस्टलाइज ऑन द लाइंस पार्टी टेक। ये नहीं है जनता ने तो बोल दिया, ग्रुप ने तो बोल दिया, सबके अलग अलग राय थी और उस राय को एक व्यू दिया, शेप किया पब्लिक ओपिनियन को, और फिर ये पार्टीज़ का ही काम है कि उसको क्रिस्टलाइज करना, उसको सॉलिडिफाई करना। ठीक बेटा। अब 7th पॉइंट है, पार्टीज़ प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंट बाय द गवर्नमेंट्स। अब जब सरकार कोई भलाई की स्कीम चलाती है तो यही पार्टीज़ हैं जो पीपल को गवर्नमेंट का एक्सेस देती हैं। एक ऑर्डिनरी सिटीज़न के लिए, एक आम नागरिक के लिए ये बहुत इजी है कि वो किसी लोकल पार्टी के लीडर को अप्रोच करे, उसके लिए इजी है, ना कि गवर्नमेंट ऑफिसर के अप्रोच करने में उसको शायद एक आम नागरिक के बस का नहीं होता। लेकिन लोकल पार्टी का लीडर जो है उसको वो मिल लेता है, अप्रोच कर सकता है। इसीलिए ये सिटीजन्स फील करते हैं कि वो पार्टीज़ के क्लोज हैं काफ़ी, ठीक है। वो ट्रस्ट कर जाते हैं, विश्वास कर जाते हैं। पार्टीज़ have to be responsive to people's needs and demands। ये पार्टीज़ का ही काम है, फंक्शन है, लोगों की ज़रूरतें, लोगों की डिमांड्स को पूरा करना, उनको रिस्पांस देना। अदरवाइज पीपल कैन रिजेक्ट दोज पार्टीज़ इन दी नेगेटिव। अगर ऐसा नहीं होगा, आपने देखा ही है, आपके एरिया में आते हैं, सड़कें बनवा देंगे जी, वोट देना, हाथ जोड़ जोड़ के घरों में आते हैं, ठीक है। वोटों से पहले कुछ दे के भी जाते हैं, लालच देते हैं, ल्योर, और बोलते हैं कि हाँ हम करेंगे, सड़क भी बनाएंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। लेकिन जब इलेक्शन निकल जाते हैं, बंदा जीत जाता है, फिर राम राम, कोई वादे याद नहीं रहते। ऐसे लोगों को फिर दोबारा पार्टी में टिकट नहीं मिलता। ऐसे लोगों को पार्टी रिजेक्ट कर देती है, पीपल रिजेक्ट कर देते हैं, और अगले इलेक्शंस में वे फिर वो कभी आ नहीं पाते। अदरवाइज पीपल कैन reject those parties in the next elections। नहीं तो जनता ऐसी पार्टीज़ को अगले इलेक्शंस में खड़े नहीं होने देती। ओके चिल्ड्रन, सो ये ख़त्म हुआ फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। प्लीज़ मार्क इट हेयर, यहाँ तक निशान लगा लो। और बच्चों, मैं हिंदी में भी समझाया, आप जब तक इसकी एक रीडिंग
नहीं लेंगे और जब तक इनके एक एक छोटे छोटे रिटर्न में पॉइंट्स नहीं बनाएंगे तब तक कुछ समझ नहीं आएगा। इस तरह यू मस्ट गो थ्रू दी चैप्टर, जितना पढ़ा दिया गया है कि पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत क्या है, पार्टी का मतलब क्या होता है, पार्टीसन क्या होता है, पार्टीसनशिप क्या होती है, पॉलिटिकल डिविजन्स कितनी होती है पार्टी की, और पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शंस क्या होते हैं। मैंने आपको 7 फंक्शंस भी इसके समझा दिए हैं और आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम ज़रूरत क्यों पड़ती है पॉलिटिकल पार्टी की, नेसेसिटी, ये पढ़ेंगे। अगर आपको टाइम लगे तो पढ़ लेना, अदरवाइज मैं पढ़ाऊँगा, बट अ रिव्यू must be taken by the students as well. Notes should be made side by side. Thank you and have a very nice day.